व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई शुड टेक। सबसे पहला सवाल एक आदमी के दिमाग में आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। गलती करने के पहले अगर इंसान को मालूम पड़ जाए ना, गलती करने से बच सकता है। एक छोटा सा प्रोवर्ब है, शेयरिंग इज केयरिंग। दैट इज वेयर वाइब्रेंट इंडिया विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Hello viewers, welcome to Channel 6 Network. I'm your host Rabia Hayat for Vibrant India Economic Council Empower MSME Talk Show. Today we have our guest Mr. Pawan Kolte, who is a chartered accountant and well versed in management consultancy and tax compliances. Apart from this, Mr. Pawan Kolte is a trustee of an ICSE school. And he is playing a vital role being a non-executive director of Vibrant India Economic Council. Mr. Pawan Kolte, welcome on Channel 6 Network. It's a pleasure to have you here. थैंक यू। So, Mr. Kolte, being a professional and trustee of an ICSE school, what urged you to be a part of VIEC? Because I could see that you are coming from a totally different background. Yes, actually, what urged me to join Vibrant India as a governing council member was the total idea and the concept that was brought before me by Mr. Manoj Patil and Mr. Mahesh Tapase. I started my Mumbai office in 2020 when I met Mr. Manoj Patil and Mr. Mahesh Tapase. They explained me in very detail that what they are planning to do in Vibrant Economic Council, and it very much excited me. At the same time, it showed me that yes, I can do some really good work here. That's why I joined. मिस्टर कोल्टे, नॉर्मली लोगों को लगता है कि एमएसएमई एसोसिएशन का हिस्सा बनना इज अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, नॉर्मली लोग जो एमएसएमई एसोसिएशन से जुड़ते होंगे, वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस शायद वो तरीके का होता होगा। लेकिन मेरी राय ये है कि जैसे कि मैं एक स्कूल, हमारा फैमिली ट्रस्ट स्कूल रन कर रहा है, तो जो कठिनाइयाँ हमने फेस की, उस समय वी वांटेड समबडी टू बी अ मेंटर फॉर अस। हम चाहते थे कि कोई हमें गाइड कर पाए। हमसे कुछ गलतियां हुई जो हमने समय के साथ हमने खुद उसे सुधारा। लेकिन अगर हमें कोई वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए होता, कोई हमें मेंटर करने के लिए होता, तो शायद हमसे वो गलतियां ना होती। सो दैट्स व्हाई एमएसएमई एसोसिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा प्रोवर्ब है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो व्हाट एसोसिएशंस डू इज दे शेयर नॉलेज, they share their resources. They also share a lot of They provide you skills with proper each other. guidance, Yes, right? exactly. I think this is the Proper guidance appropriate is thing. provided. Yeah. हर एमएसएमई जो शुरुआत होती है, उसके साथ में सबसे पहला सवाल एक आदमी के दिमाग में आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। Absolutely. What is the first step I should take? So that is where Vibrant India will play a very important role. VIC is planning to onboard professionals in this mentorship council. अगर जैसे किसी भी पर्सन को अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, if he becomes our member, तो he will have a panel of professionals to whom he can ask his basic questions, which can be answered very very effectively by our mentors. तो शुरुआत करने की जो कठिनाई होती है किसी भी इंसान को, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। Okay. How many mentors you have currently and what are your future plans? Currently, we have around 3 to 4 mentors. Okay. And in future, we are planning to onboard at least 40 mentors. We have identified some heads for our mentorship. Accordingly, we are planning to onboard at least 40 mentors. 40 mentors is a number. So you think it's possible? Yeah, obviously it will be possible. Because the way I joined Vibrant, जिस तरह से मैं Vibrant से जुड़ा हूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा काम भी कर सकूं पब्लिक एट लार्ज के लिए, इसी तरह बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं who want to do good work, want to contribute back to the society. In a way, we are helping people to set up businesses over here. तो हमारे वजह से अगर किसी का बिजनेस सेटअप हो रहा है, तो बिजनेस सेटअप होने के बाद में उससे जनरेट होने वाला एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे। तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसमें इंटरेस्टेड ज़रूर रहेंगे।
बहुत सारे एमएसएमई एसोसिएशन है, तो ऐसे में हाउ वीआईईसी इज यूनिक? वीएसी का सबसे यूनिक फैक्टर ये है कि हमारे साथ में अलग-अलग फील्ड्स के प्रोफेशनल्स हैं। हम्म अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास में जाते हैं, कोई भी एमएसएमई या किसी प्रोफेशनल को एक सिंगल प्रोफेशनल को अगर उसको अप्रोच करना है, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। या एक सिंपल तरीके से अगर हम देखें, अगर किसी को एक फैक्ट्री सेटअप करना है, तो ही विल नीड आर्किटेक्ट, ही विल नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही विल नीड अ कंपनी सेक्रेटरी। अलग-अलग प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी जब ये सारे प्रोफेशनल्स आपको एक छत के नीचे आपको सजेशंस देने के लिए अवेलेबल हैं, तो इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी, वेरी यूनिक थिंग दैट वी आर डूइंग हियर। पवन जी, बहुत से ऐसे एमएसएमई और प्रोफेशनल्स हैं जी। जो एमएसएमई को ज्वाइन करने जो बिजनेस फोरम को ज्वाइन करने में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और हिचकिचाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, जैसे ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बहुत सारे उनके क्वेश्चंस हैं जिन चीज़ों को जहन में रखते हुए वो लोग आगे नहीं आते। जी। तो ऐसे में आप अपना क्या रोल प्ले करेंगे? ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जरिए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा इंकरेजमेंट दिखाएं और इन्वॉल्व होने की कोशिश कम से कम करें? जी। अभी ऐसा है मैम कि जितने भी एमएसएमई के एसोसिएशंस होते हैं, उसमें जो लोग जॉइन होने से हिचकिचाते हैं, हम्म उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी एसोसिएशन से जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद आपका जो नॉलेज बढ़ेगा, आपके पास में जो अलग-अलग आपके रिसोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे जुड़ने के बाद, वो आपके बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से आप उसे ग्रो कर पाएँगे। देखिए, बिज़नेस को ग्रो करना एक टारगेट है, लेकिन आप किस तरह से उसे ग्रो कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। हम्म अभी मैं मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। हमारा स्कूल का इनिशियल ईयर्स में काफ़ी हमको तकलीफ़ें आई। तो उसको नेविगेट करने के लिए हमने अलग-अलग लोगों से मिलना शुरू किया, जिन्होंने स्कूल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, कुछ सीनियर लोगों से हमने मुलाकात की। तो उनसे जो हमें नॉलेज गेन हुआ, उसकी वजह से टुडे वी आर एबल टू रन दैट एंटरप्राइज सक्सेसफुली। तो ये सारी जो नॉलेज गेन होता है ना, अगर एक एसोसिएशन में आप जुड़ जाते हैं, तो आपको वहीं पे सारे लोग मिल जाएंगे। जैसे वाइब्रेंट में मेंटरशिप का काउंसिल जो है, उसमें हर तरीके के प्रोफेशनल्स रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, जो आपको कैपिटल रेजिंग के लिए भी हेल्प करेंगे। अगर आपका पैसा कहीं अटकता है, तो डिलेड पेमेंट्स आप किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, उसके लिए आपको हेल्प करेंगे। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, जो आपको टैक्स कंप्लायंसेस में हेल्प कर सकते हैं। इसके अंदर सेक्टोरल मेंटरशिप करके भी एक कंसेप्ट है, जो आप जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका चैनल 6 नेटवर्क है, इट्स कंसर्निंग अबाउट मीडिया। तो मीडिया के भी सेक्टर के हम उसमें स्टॉलवर्ड्स हमारे साथ में इन्वॉल्व करेंगे, ताकि जो चैनल 6 जैसे नए नेटवर्क्स आएंगे, उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह से हमें बिजनेस प्लान करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। गलती करने के पहले अगर इंसान को मालूम पड़ जाए ना, तो वो उस गलती करने से बच सकता है। जी गलती करने के बाद तो सभी सीखते हैं। हम चाहते हैं कि इंसान गलती करने के पहले समझ जाए। तो एमएसएमई एसोसिएशन का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आई विल अर्ज all MSMEs to join associations, and especially association like Vibrant India Economic Council, where you get all kind of consultations under one roof, and that too free of cost. सो व्यूअर्स, ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर पवन कोल्टे, जो प्रोफेशनली है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग अ ट्रस्टी ऑफ एन आईसीएसई स्कूल इतना वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं टू बी अ पार्ट ऑफ VIEC, to be a part of the MSME world. I hope you liked it. Thank you, Pawan, for being here. It's a pleasure to have you here on Channel 6 Network. Thank you, Rabia, and thank you, Channel 6 Network, for having me here. You are watching Channel 6 Network. Don't forget to follow us on social media.